کر رہے تھے اپنا ریگولر پروگرام تھا ہمارا سورۃ النساء ہم کر رہے تھے، جس میں ہم آیت نمبر 26 انشاءاللہ آج ہم کریں گے. تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا الہی آمین. اب آیت نمبر 26 آج جو ہم شروع کریں گے، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پہلے جو ہم نے لاسٹ پروگرام کیا تھا اس کی بیسیکلی اسی کا ہی یہ کنٹینیوشن ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں درجات منہ، کہ درجات ہیں اس کے لیے اس کی طرف سے، منہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ومغفرت ورحمہ، اور اللہ کی بخشش ہے اور رحمت ہے. تو اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میں تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں پچھلے پروگرام میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مسلمان جو ہیں دو گروہ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اسلام کو پھیلا رہے ہیں، لوگوں تک جا رہے ہیں، کلاسز دے رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، دن رات کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. دنیاوی زندگی میں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی جو بھی ارننگ ہے اس کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن جیسے ان کو وقت ملتا ہے پھر وہ بھاگتے ہیں اس راستے میں. اور ایک وہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی محنت نہیں کرتے، بٹ وہ اپنے پیسوں دے دیتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم ڈونیشن دے دیتے ہیں، آپ کام کر لیں. یا پھر اس طرح سے کہ وہ خود محنت اللہ کے راستے میں نہیں بھاگنے والے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اجر نہیں ملے گا، ان دونوں کو اجر ملے گا. لیکن وہ لوگ جو مجاہد ہیں، جو اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی پوری جان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں آ جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تعریف یہاں پہ کر رہے ہیں کہ درجات منہ، کہ درجات ہیں اس کی طرف سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ومغفرۃ ورحمہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مغفرت ہے اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان لوگوں. اب دیکھیے درجات کی بات ہوتی ہے تو اکثر ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے جنت میں داخل کر دے، ایک پاؤں بھی جنت میں چلا جائے گا تو وی آر فائن، الحمدللہ، ہمیں وہی کافی ہے. لیکن دیکھیں درجات جو ہے جنت کے بڑے درجے ہیں. بعض دفعہ ہمیں بعض احادیث سے ملتا ہے کہ 100 درجے ہیں، اور ایک درجہ جو ہے، جیسے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جیسے زمین پہ کھڑے ہو کے ہم آسمان کو دیکھتے ہیں نا، تو چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، لیکن ستارے اتنے بڑے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ستاروں کی طرح نظر آئیں گے، اور اتنا فاصلہ ہوگا. اور نہ صرف فاصلہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت میں یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 500 سال کی مسافت کا فرق ہوگا. کہ 500 سال آپ سوچو، گھڑ سوار جو ہوتا ہے وہ اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، اور 500 سال وہ بھاگتا رہتا ہے، تو اتنی اس سے بھی کہیں زیادہ ایک درجے سے دوسری درجے کی مسافت. اور اٹس ناٹ اونلی کہ صرف ڈسٹینس ہے. آپ سوچیں اللہ کی رحمتیں، اللہ کے کرم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبتیں، وہاں کے انعامات کیسے ہوں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو پھر ہمیں ایک لیول پہ تو نہیں ٹھہرنا چاہیے نا، نہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اوکے دیٹس فائن، دس لیول از فائن فار می. ہم کو ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے ایک اوپر درجے میں جا سکیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں درجات، ایک درجہ نہیں، درجات کے اتنے درجے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور مغفرت ہے اللہ سبحانہ. مغفرت کیا ہوتا ہے؟ کہ ڈھانپ لینا. جیسے انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ایسے نہیں لگتا کہ جیسے فار ایگزامپل ہمارے دل کو پتا ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا، تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ بس ڈھانپ لیا جائے، اس کو کسی کو نظر نہیں آئے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت بھی ہوگی، رحمت سے ہی تو ڈھانپیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور پھر دیکھیے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ، اور بے شک ہے اللہ غفور الرحیم، کہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. کیونکہ دیکھیے اس سے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں بخشنے والا، میں بخش دوں گا، مغفرت اور رحمت کی بات کی نا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی وہی صفت بعد میں لے کے آئے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے، کہ وہ اپنی مغفرت کے ساتھ انسان کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ. تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ زینا، بے شک وہ لوگ جو توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ جو فوت کرتے ہیں، جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، فرشتے ظالمی، کہ انہوں نے ظلم کیا ہوگا انفسہم،
अब देखिए जब मैं कुरान ऐसे पढ़ती हूँ ना, वो लोग जो सीरियसली एवरी एपिसोड देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज ओपन अप योर कुरान विद यू, और फिर उसके साथ आप समझने की कोशिश करें, आप बहुत इंजॉय करें। एंड साथ साथ इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि बहुत जल्द मैं तजवीद की क्लासेस भी साथ साथ स्टार्ट कर दूं, ताकि मेरी तरह के बहुत से लोग होते हैं जिनकी तजवीद शुरू में अच्छी नहीं होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें जब समझ आती है तो हम अपनी एक एक चीज़ को ठीक करना शुरू करते हैं, तो फिर और भी मज़ा आता है ना कुरान पढ़ने में। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बेशक वो लोग जो जिनको फौत करते हैं फरिश्ते ज़ालिमी, कि उन्होंने जुल्म किया होता है अनफुसहम, अपने नफ्सों पर कैसे जुल्म किया होता है। आज हम अगर सोचते कि हमने डाइटिंग करके अपने नफ्सों पर जुल्म करते, कि आज तो भूख ही बड़ी लगी थी, आज हम इतने रन किया, इतने मील दौड़े थे तो हमने जुल्म किया, हम तो बड़े सख्त थके हुए हैं, ऐसा जुल्म नहीं है बल्कि गुनाह है जुल्म। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो लोग जिन्होंने गुनाह कर लिए, अपनी जानों पर जुल्म किया, क्योंकि हमें याद है हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हर जान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास गिरवी, और हमने जाके छुड़वाना है तो कैसे छुड़वाएंगे, हमारे नेक अमाल छुड़वाएंगे ना जाके वहां पे। तो जब हमारे नेक अमाल होंगे तो हम अपने आप को आजाद करवाएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे है कि वो लोग जिन्होंने गुनाह करके अपने ऊपर जुल्म किया होगा, क़ालू, तो वो कहते हैं, कौन कहते हैं, फरिश्ते, फीमा कुंतुम, कि कहाँ किस हाल में थे तुम। जब वो जान कब्ज करने आते हैं तो वो ऐसी हालत में होते हैं ना, जैसे वो गुनाह की हालत में होते हैं, या ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है वहां पे होते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज मतलब जिस वक्त उनका आखिरी वक्त होता है वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं। तो फरिश्ते उनसे पूछते हैं कि ये तुम किस हालत में हो, तुम मुसलमान हो, तुम ये किस हालत में थे तुम इस वक्त। हमें डर नहीं लगता? देखिए ऐसी जब हम चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि हमें आखिरी वक्त का एहसास नहीं होता ना, हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम किसी को आखिरी वक्त में देखते हैं तो हमें तो यही पता होता है कि सांस आ रहा था, उखड़ रहा था, फिर आस्ता एक हिचकी आई, फिर उसके बाद थोड़ी रुकी, फिर सेकंड हिचकी आई, बंदा फौत हो गया। हमें नहीं पता होता कि उस वक्त फरिश्ते को वो देख रहा होता है या उनसे वो बात कर रहा होता है, क्योंकि हमें तो नजर नहीं आते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पे कितनी आपको दलील मिल गई ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जब वो जान निकालने आते हैं तो वो पूछते हैं कि ये तुम किस हालत में थे। तो दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि हमारा आखिरी वक्त जहाँ पे हो, हम अमन की जगह पे, हम ऐसी जगह पे रहें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी, अल्लाह सुब्हानहू तआला की ऐसी जगह है जहाँ पे अल्लाह हमसे राजी हो जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं, कौलू, वो कहेंगे, जब फरिश्ते उनसे पूछेंगे ना तो वो लोग कहेंगे, कौलू, वो कहेंगे, कुन्ना, कि थे हम, मुस्तदअफीन फिल अर्द, कि हम जमीन पर तो बड़े ही कमजोर थे। अब वो बहाना जैसे नहीं होता कि करेंगे कि देखें असल में वजह क्या थी कि हम तो बड़े मजबूर थे, भाभी ने मना कर कहा था कि आप मेरे शादी पे तो तुमने आना ही आना है, तो मेहंदी पे भले डांस हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, मेरी अम्मी ने मुझे मजबूर कर दिया था, मेरी दोस्त ने कह दिया कि देखो अगर तुम नहीं आई मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, तो मैं अब क्या करती, मैं तो कमजोर थी तो मैं आ गई थी फिलहाल जमीन पे। क़ालू, वो कहेंगे, वो कहते हैं, अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिया, क्या जमीन जो थी, अर्दुल्लाह, अल्लाह की जमीन जो थी वो वसी नहीं थी तुम्हारे लिए, फतुहाजिरू फीहा, तो तुम उधर चले जाते, कि तुम ऐसे कोई बहाना कर लेते। कोई भी आयत सबसे पहले देखिए किसका एक शान नज़ूल होगा, इंशाल्लाह वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन शान नज़ूल के बाद आप ये देखें कि वो आयत हमारे लिए, ये मेरे लिए है पर्सनली। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन थी तो तुम ऐसे दोस्तों से हिजरत कर जाती, तुम ऐसे लोगों को दोस्ती करती जो तुम्हें मजबूर नहीं करते, राइट। फउलाइका, तो बस यही हैं वो लोग, मअवाहुम जहन्नम, जिनका ठिकाना जहन्नम है, वसाअत, और ये बहुत बुरी जगह है। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि देखिए जहन्नम में जाना, और आप अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फिर कल को ना कहना आके कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नहीं बताया था। अब हुआ क्या था, इसका शान नुज़ूल क्या था कि मक्का में, क्योंकि आपको याद है मैंने बताया था कि हिजरत का हुक्म आ गया था, तो फिर हिजरत लाजमी थी, जैसे हम कलमा पढ़ते हैं इसी तरह से कलमा पढ़ के और हिजरत करने का था। जिसने हिजरत नहीं की थी वो मुसलमान ही नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया अनलेस के वो कमजोर है, वो औरतें हैं या बच्चे हैं या किसी का गुलाम है जो हिजरत नहीं कर सकते, वो एक्सेप्शंस भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी। लेकिन जो हिजरत कर सकता है और वो बहाने से हिजरत नहीं करता तो वो मुसलमान नहीं। अब हुआ क्या कि हिजरत करना क्यों जरूरी था, क्योंकि अभी मुसलमान जो थे वो ताकत में ज्यादा होने था उनको, और अगर ज्यादा लोग नहीं होते तो मुसलमान फिर कमजोर होते, फिर जब हमला होता तो वो आर्मी कहाँ से लेके जाते, वो कैसे बताते कि मुसलमानों की तादाद ज्यादा। ये तो अभी बिगनिंग लेवल था ना मुसलमानों का। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म हो गया कि जो भी मुसलमान है वो मदीना की तरफ हिजरत कर जाए। अब हुआ क्या कि वो लोग जिन्होंने मक्का से हिजरत नहीं की थी और वो बहाने कर रहे थे क्योंकि उनका कारोबार था,
फॉर एग्जाम्पल उनकी मोहब्बतें थी, दोस्तियां थी उधर, या शुरू से ऑफ कोर्स इट वाज नॉट ईजी। आप सोचिए कि जहाँ पे हम सारी उम्र रहे होते हैं, हमें कहे चलो जी हिजरत करो यहाँ से, और कारोबार उधर है, हमें पता ही नहीं कि आगे क्या होना है। बहुत बड़ा इम्तिहान था साहबा के लिए भी जिनको हुक्म आया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अब क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हिजरत नहीं की थी, अब क्या था, वो मदीना मक्का में थे। अब मक्का में जो मुशरिकीन मक्का थे, जब उन्होंने बदर में जैसे था, ओहद में था, मुसलमानों के अगेंस्ट जब लड़ाई करने आते थे, तो डेफिनेटली वहां पे जो लोग थे उनको उनका साथ देना, वो कहते थे कि चलो हमारे साथ। उस वक्त ऐसा तो नहीं होता था कि आर्मी अलग से तैयार हो रही है तो वो आर्मी निकलती थी हमला करने के लिए और बाकी पीछे रह जाते थे। उस वक्त तो ये होता था कि वजह क्या होती थी कि देखिए उस जमाने में गोश्त खाने की कोई दुकानें नहीं होती थी कि अच्छा जी इतना गोश्त खाना है वहां दुकान से ले आओ। अब अगर किसी को गोश्त खाना होता था तो वो शिकार करते थे। तो जैसे आजकल के छोटे से छोटे बच्चों को भी आप देखें गेम्स कैसे खेलते हैं ना, हम खुद हैरान हो जाते हैं कि उनको कैसे पता है। इसी तरह से उस जमाने में छोटे से छोटे बच्चों को भी शिकार का पता होता था। वो जाते थे, शिकार करते थे, गोश्त लाते थे, उसको खा लेते थे। तो इसी तरह से फिर वो जंगें होती थी तो पूरी आर्मी पहले से तैयार होती। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जब हुक्म जंग का होता था, उधर से कुफारे मक्का जैसे वो लोगों को कहते थे कि हमारे साथ चलो। अब अगर कोई साथ नहीं आता तो डेफिनेटली वो पैसों से मदद करते थे, और अगर पैसे नहीं देते थे तो खुद उनको आना पड़ता था साथ। अब जब वो मैदान जंग में आ गए, दूसरी तरफ मुसलमान है लड़ने के लिए। अब मुसलमान के तीर से अगर कोई जख्मी हो जाता है या वो मर जाता है या कुछ ऐसे होता है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो फरिश्ते जब उनकी जान निकालने आएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि अच्छा तुम मुसलमान थे, तुम तो अब डेफिनेटली अगर वो नेक है तो नेक फरिश्ता आएगा ना उनकी जान लेने। तो अब फरिश्ते कह रहे हैं कि अब क्या बहाने कर रहे हो, और वो कह रहे हैं कि हम तो कमजोर थे। तो वो कहेंगे कि नहीं, अगर तुम कमजोर थे तो तुम दूसरी जगह पे हिजरत कर जाते, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जमीन को छोटी थी। तो अब यहाँ से हमें क्या सबक मिलता है कि जब भी कभी किसी जगह पे ऐसा काम हो, फॉर एग्जाम्पल आप हमारी जॉब है, अगर जॉब पे हमें कोई ये कहता है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, तो क्या हम वहां पे जॉब कर सकते? नहीं कर सकते। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से देखिए इस्लाम के हकूक अगर आ जाती है ना बात कि हमारे मजहब की अगेंस्ट कोई चीज आती है तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अब बिलीव करें वल्लाही ऐसे होता है कि द मोमेंट आप स्ट्रांग होते हो ना अपने मजहब में, अपनी रिलीजन में, आपको कोई मना नहीं कर। टाइम कितना मिलता है, आप अपनी देखिए टाइम ऐसा तो नहीं है कि नमाज एक पढ़ी तो 5 मिनट में दूसरी, तो 10 मिनट में दूसरी हो गई। आपका लंच ब्रेक होता है, आप अपने लंच ब्रेक में जाते हैं, आप आराम से जाके सिर्फ फर्स्ट पढ़ आते हैं, इसमें देर भी नहीं लगती है, आपके लिए आसानियां हो जाती हैं। आपका इरादा हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानियां कर देते हैं। लेकिन इस आयत से हमें ये पता चलता है कि कोई बहाना एक्सेप्ट नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियर बता दिया इधर। और आगे देखिए आयत नंबर 98 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इल्ला, मगर। देखिए फिर वही बात आती है कि ये इतना सख्त हुक्म था कि अगर तुम ऐसे करोगे तो वो उसका ठिकाना जहन्नम है, वह सात मसीरा, और वो बहुत बुरी जगह है रहने की। लेकिन अब क्या, अगर हर कोई भी ये सोचता है ना कि ओहो तो फिर मेरा क्या बनेगा, तो लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा मगर वो लोग जो इल्लल मुस्तदअफीना, मगर वो जो कमजोर थे, मिनर रिजाली वन निसाई, आदमियों में से, औरतों में से, वल विल्दान, और जो बच्चे थे, ला यस्ततीऊना हीलतम वला यहतदूना सबीला, कि अगर वो नहीं इस्तात रखते थे हीला किसी तदबीर का, वला यहतदूना सबीला, और वो नहीं पाते कोई भी रास्ता, मतलब कमजोर हैं, किसी के गुलाम हैं, वो नहीं जा सकते, औरतें हैं वो अकेले सफर नहीं कर सकती, और अकेले कैसे जा सकती हैं हिजरत करके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उन पे कोई इल्जाम नहीं है, उनको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। उनका अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी नियतों को जानते हैं कि उन्होंने हिजरत क्यों नहीं की। और आगे आयत नंबर 99 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अब मेरा ख्याल एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया है इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम कर रहे हैं आयत नंबर 99 सूरत अन-निसा, जिसमें देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आप कह रहे हैं कि फउलाइका, बस यही लोग हैं, असल्लाहु, के अल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह अन याफुआ अन्हु, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दरगुजर कर दे उनसे, वकानल्लाहु, और बेशक है अल्लाह अफूवन गफूरा, कि बहुत माफ करने वाला और बख्शने। ये कौन लोग हैं? जो कमजोर थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी नियतों को जानते थे कि उन्होंने हिजरत नहीं की है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको माफ कर दे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 100 जो है सूरत अन-निसा,
वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, और जो कोई हिजरत करेगा अल्लाह की राह में, यजिद फिल अर्दी, तो वो पाएगा ज़मीन में मुरागमन, जायपना, कसीरा, कसीरा बहुत बड़ी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो हिजरत करेगा उसको तो बहुत ज़्यादा ऐसी जगह मिलेंगी, एक दफ़ा निकलने का इरादा तो करें, वसा, और उसको बड़ी वुसअत भी मिलेगी उसमें, वमन यखरुज, और जो कोई निकलेगा, मिन बैतिही, अपने घर से, मुहाजिरन, हिजरत करते हुए, इल्लाह, अल्लाह की तरफ, और रसूल ही, और उसके रसूल की तरफ, सुम्मा युदरिकुहुल मौत, तो फिर वो पाले उसको मौत, फ़क़द वक़अ अजरुहु, तो पस तहकीक वाक़या होगा, अजरुहु, उसका अजर, अल्लाह, अल्लाह की तरफ, वकान अल्लाहु, और बेशक है अल्लाह, गफूरुर रहीमा, बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर कोई इंसान, अपने मुसलमान अगर अपने घर से निकलता है इरादे से कि वो हिजरत करने के लिए निकला है, और रास्ते में उसको मौत आ जाती है, उसको तो उसका क्या होगा? पांच दफा सहाबा, एक दो दफा ऐसा हुआ कि सहाबा ने कहा कि फलां बंदा निकला था, रास्ते में अगर उसकी मौत हो गई तो अभी तो वो उस जगह पे नहीं पहुंचा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके लिए क्या फैसला करेंगे? तो इसके लिए एक वाकया आता है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि बनी इसराइल का एक शख्स था जिसने 99 कत्ल उसने किए, तो उसके दिल में ये ख्याल है कि मैं तौबा करता हूँ और मैं ये मैंने बहुत गलत कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, इस वाक़े से आप एक आलिम और एक आबिद का फ़र्क देखेंगे कि किस तरह से, और आप फिर तौबा करने का देखेंगे कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करते हैं। कि हुआ क्या कि जब उसको ये एहसास हुआ तो वो एक आबिद के पास जाता है। आबिद कौन होता है? जो इबादत गुजार होता है ना, उसके पास जाता है और उसको जाके कहता है कि देखो मुझसे तो बहुत गलती हो गई, मैंने इतने लोगों को 99 लोगों को मैंने कत्ल कर दिया, तो क्या मुझे अल्लाह माफ़ कर सकता है? अब मुझे लगता है कि मैंने बड़ा गलत किया, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और उस आबिद ने उसको कहा कि लो, ऐसा कैसे हो सकता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें माफ़ करे, तुमने तो इतना गलत काम किया। अब उसको गुस्सा आया, उसने उस आबिद को भी मार दिया। अब वो वापस गया, फिर अब वो अपनी रेगुलर जिंदगी में वापस चला जाता है। कुछ देर के बाद उसको फिर एहसास होता है कि ये मैंने मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, मैं मेरे से बड़ा गलत काम होता है। अब इस दफ़ा क्या हुआ कि वो एक आलिम दीन के पास गया और जाके उनको ये बताया कि देखिए मेरे से ऐसे, मैं 100 लोगों को मैं मार चुका हूँ और अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश है? तो उन आलिम दीन ने उसको कहा कि हाँ बिल्कुल, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौबा तो हर एक वक्त दरवाज़ा खुला हुआ है। तुम बस एक काम करो, गौर से सुनने की बात है कि तुम एक काम करो कि जिस जगह पे तुम रहते हो, तुम्हारी दोस्तियां ऐसे लोगों के साथ हैं, तुम ऐसे लोगों के अराउंड हो कि तुम्हारा चेंज होना बड़ा मुश्किल है। तो तुम यूं करो कि फलां बस्ती में नेक लोग रहते हैं, सारे परहेजगार हैं, तुम उस बस्ती में चले जाओ और तुम उनके साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए ये चेंज करना आसान हो जाएगा, और तुम्हारी अल्लाह सुब्हानहू तआला तो तौबा कबूल करने वाले हैं, और फिर तुम आसानी के साथ नेकी के रास्ते पे आ जाओगे। अब वो शख्स पक्का इरादा कर लेता है और वो अपने शहर से निकलता है। जैसे ही वो निकलता है, रास्ते में उसको मौत वाक़या हो जाती है। अब जैसे वो उसको मौत होती है तो एक नेकी के फरिश्ते होते हैं ना, जो जान लेने आते हैं, नेक लोगों की जान लेने आते हैं, और एक बदी के होते हैं कि जो ऐसे लोगों की जान लेने आते हैं जो बुरे होते हैं। अब दोनों फरिश्ते आ जाते हैं। अब उनमें आपस में लड़ाई होती है कि नेकी का फरिश्ता कहता है कि नहीं, इसने तौबा कर ली थी, इसकी जान मैं लेके जाऊंगा। और अब बुराई का फरिश्ता कहता है कि नहीं, ये तो अभी उस जगह पे नहीं पहुंचा था, अभी तो ये अपने शहर से निकला है, अभी आधे रास्ते में भी नहीं है, तो मैं इसकी जान लेके जाऊंगा। अब देखिए, आपको याद है ना कि इसमें हमने एक वाकया पढ़ा था कि जो नेक रूह होती कैसे आसमान की तरफ उठती हैं, और जो बुरी रूहें हैं वो किस तरह से जमीन की तरफ फेंक दी जाती हैं, और क्या सारा वो मैंने पूरा आपको सुनाया था। अब बिल्कुल वो इमेजिन कीजिए कि अब यहाँ पे ये वाकया हो रहा है। अब वाकया जो है, ये बात अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहते हैं कि तुम यूँ करो कि ज़मीन जहाँ से वो निकला है, तुम ज़मीन नापो कि अगर तो वो ज्यादा करीब है उसके जहाँ पे उसने जाना था तो वो जन्नत वाले फरिश्ते उसको ले जाए, और अगर वो उसके करीब है जहाँ से वो निकला था, बुरे वाली जगह से निकला था, तो वो बुरे वाले फरिश्ते उसको ले जाएंगे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वो वसी हो जाए उस तरफ जिस तरफ उसने जाना था। तो वो जैसे जब उन्होंने उसको मय्यर किया, नापा उसको, तो एक बालिश ओनली वो जमीन जो थी वो ज्यादा थी। तो फिर नेकी के फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि इसकी जान का। सुभान अल्लाह। देखिए, हम कई दफा बहुत सैड हो जाते हैं ना इन चीजों से कि आई डोंट नो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कैसे कबूल करेंगे, हमारे गुनाह ऐसे हो जाते हैं
या पता नहीं मैं गुनाहगार हूँ इसलिए मेरी फलां दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत माफ कर। आप एक दफा सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने बस खड़े हो जाएं कि या रब्बुल आलमीन हमें माफ कर दें, हमसे ये गलतियां होंगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ढांप लेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कभी रुस्वा नहीं करेंगे जब हम उस पर तवक्कल करें। तो यहाँ पे यही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वाक़ा, तो वाक़या हो गया अजरुहु, उसका अजर अल्लाह, अल्लाह पर, वकान अल्लाह, तो है अल्लाह गफूर रहीमा, के बहुत बख्शने वाला और अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आगे देखिए आयत नंबर 101 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं व इज़ा दरबतुम फिल अर्द, और जब तुम सफर करो तुम जमीन में, फलैसा अलैकुम जुनाहन, तो नहीं है तुम पर कोई भी गुनाह अन के तकसुरू, के तुम कसर करो मिनस्सलात, नमाज में। अब यहाँ पे नमाज कसर के बारे में ये आयत है कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब तुम सफर में निकलते हो तो तुम अपनी नमाज को कसर कर लो। कसर मीन्स के जो 4 फर्ज हैं वो हम 2 पढ़ते हैं, सवाए फजर के एन मगरिब के नमाज के, वो हमने जैसे फजर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सुन्नत नहीं छोड़ी थी, तो वो हम 2 सुन्नत 2 फर्ज जो है वो हम पढ़ेंगे। एंड मगरिब की नमाज में हम 3 फर्ज जो है वो हम उसी तरह से पढ़ेंगे। बाकी नमाज में हम लोग कसर करते हैं, जैसे 2-2 फर्ज पढ़ते हैं, जिसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे इजाजत दे रहे हैं। और आगे है कि इन खिफ्तुम, अगर तुमको खौफ हो तो अन के यफ्तिना कुमुल्लज़ीना कफरू, के तुम्हें फितने में न डाल दें वो लोग जिन्होंने कुफर किया। अब देखिए यहाँ पे नमाज खौफ की बात हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि खौफ के वक्त में तुम्हें अगर डर हो तो तुम नमाज कसर कर लो। तो सहाबा ने एक दफ़ा हज़रत उमर से पूछा था कि उमर, यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि अगर खौफ हो तुम्हें तो तुम नमाज कसर कर लो, तो हम तो अमन की हालत में हैं, तो फिर हम क्यों कसर करें नमाज। तो हज़रत उमर ने कहा था कि खुदा की कसम मैंने यही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से रहमत है और उनका सदका है और उसका एहसान है जो तुम ले लो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आसानियां दी। तो आगे देखिए, अच्छा कसर नमाज में ये है कि देखिए खौफ की नमाज आपको पता है एक होती है, एक रकत होती है, एंड अगर हम कसर नमाज पढ़ते हैं तो डेफिनेटली वो तो 2 फर्ज होते हैं, एंड रेगुलर हम जो 4 पढ़ते हैं और जैसे भी नमाज का वो तो आपको सारा पता है। लेकिन खौफ की नमाज के बारे में मैं आपको यहाँ पे जो आगे भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वक्त पे नमाज पढ़ने का कितना हुक्म है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और जब हम सफ़र में होते हैं तो कितने दिन हमको सफ़र में हम कसर कर सकते। ये फिर आपको यहाँ पे कुरान में आपको इसके बारे में नहीं मिलेगा कि दिन कितने और सफ़र कितना और किस जगह पे कर सकते हैं, तब हमें जाके हदीस से देखना होगा। और वो लोग जो हदीस नहीं मानते फिर वो किधर जाएंगे, वो कैसे कसर नमाजें पढ़ेंगे और क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी वाज़ेह हदीस भी नहीं मिलती है सवाए इसके कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल फिर देखते हैं कि उन्होंने क्या किया था। जब वो हिज्जतुल विदा के मौका पर गए थे तो 19 डेज वहाँ पे रहे थे, तो 19 डेज में उन्होंने नमाज कसर करके पढ़ी थी, तो उससे हमें ये मिलता है कि अच्छा 19 डेज तक हम कसर कर सकते हैं। फिर जैसे इमाम हम अबू हनीफा हैं वो 15 डेज कहते हैं, इमाम मालिक शाफी का डिफरेंट है कि इतने दिन आप कर सकते हो, तो उस तरह से हम ये देखेंगे। फिर ये कि नमाज कसर में आपको ये देखना होगा कि अगर आप किसी भी जगह पे ऐसे हैं कि फॉर एग्जांपल 19 डेज तो आपने किया, उसके बाद तो फिर आप पूरी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको शक है जिस जगह पे आप ठहरे हैं कि मे बी मैं अगले हफ्ते चली जाऊं या मैं नहीं जाती, जब तक आप जब तक आप शक की हालत में होते हैं तो तब तक आप अगर 6 महीने भी अगर कहीं पे है ना और शक की हालत में आप कसर नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप शक नहीं, आपको पक्का पता है कि मैं इसी जगह पे मुकीम रहूंगी, तो फिर आप अपनी पूरी नमाज 19 डेज के बाद पढ़ लेंगे। और अगर आप 19 डेज पे या फिर 15 डेज, अगर आप वो आपका है कि आप कौन से मसले को फॉलो करना चाहते हैं या किस इमाम को देखना चाहते हैं, और कोई आसानी आपको जो भी समझ आती है आप उसके मुताबिक देख लीजिए, तो फिर इस तरह से रूलिंग हो जाएगी। ये तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक अभी आपको नॉलेज दे रही हूँ, बाकी अगर आप देखते हैं तो आपको इंशाल्लाह इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यफ्तीनुकुमुल्लज़ीना कफरू, के फितने में ना डाल दे तुम्हें वो लोग जो काफिर हैं, मतलब नमाज खौफ की बात हो रही है ना। इन्नल काफिरीना, बेशक काफिर कानो हैं, लकुम तुम्हारे लिए, अदुव्वुम मुबीना, के खुला दुश्मन है। वैज़ा कुन्त फीहिम, और जब हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीहिम इनमें, फ़अक़मत तो कायम करें आप, लहुम उनके लिए, अस्सलाता नमाज, फलतकुम तौइफ़तुम मिनहुम माक,
تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت منہم ان میں سے معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھے اسلحتہم اپنے اسلحوں کو، فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا تو پس ہو جائیں وہ مِن وَرَائِكُمْ آپ کے پیچھے، وَلْيَأْتِي تو چاہیے کہ آئے طائفتٌ ایک گروہ اخرى دوسرا لم یصلوا تو انہیں وہ نماز پڑھے، فَلْيَصَلُّوا تو بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے معک آپ کے ساتھ۔ اب یہاں پہ یہ ایک لمبی آیت ہے تو میں اس کو آپ کو بریک کر کے بتاتی ہوں کہ دس از مائی فیورٹ ترین آیا، کیونکہ نماز کا جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک امپورٹنس آف نماز وقت میں پڑھنے کی، وہ آپ کو سمجھ آتی ہے، اور اتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ جب بھی میں کسی سے بات کرتی ہوں اسپیشلی اپنے بچوں سے، تو میں ان کو ہمیشہ اس آیت کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آپ دیکھو تو صحیح کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز جنگ میں جب دشمن آپ کے سامنے ہے، جب آپ کی جان کا خطرہ ہے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا جب جنگ ختم ہو جائے گی تو 2-3 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ لینا، جیسے ہم کیا کہتے ہیں جی جاب پہ تھے نہیں پڑھی تو رات کو آ کے ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں، اور یا پھر بیٹھے اچھا ڈرامے کا وقت ختم ہو گیا تو چلو پھر ابھی تو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا تو چلو مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں گے، ہوتے نا کئی دفعہ ایسی بات ہمارے اللہ نہ کرے سب نہیں کرتے ہیں، میں بار بار جب ایسی بات کرتی ہوں تو میں ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ ہر ایک نہیں کرتا، لیکن یوزلی میری طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے جب ہمیں نہیں اتنا اسلام کا پتہ ہوتا تو ایسی چیزیں ہم کنوینئنٹلی کر لیتے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ میدان جنگ کا حکم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں مشرکین مکہ کو یہ پتا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ عصر کی نماز میں وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو اتنی پیاری ہے کہ ان کو اپنے اولاد اور اپنے مال سے بھی زیادہ پیاری ہے، تو وہ تیاری یہ کہہ رہے تھے کہ the moment یہ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ چھوڑیں گے تو نہیں تو ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کر کے بتایا کہ اب کیا کرنا ہے کہ آپ نماز قائم کریں، اور صحابہ کا ایک گروہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے آ کے ایک رکعت پڑھے گا، نماز خوف ایک رکعت ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہو جائیں گی تو صحابہ ایک رکعت پڑھ کے وہ پیچھے جائیں گے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ان کے پیچھے آ کے وہ نماز پڑھے گا، اور وہ جا کے آگے شیل کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور وہ جنگ کریں گے۔ کین یو امیجن کہ نماز نہیں چھوڑ سکتے ایون اس حال میں، تو ہم کتنے آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کروڑوں نعمتوں کے اندر بیٹھے ہوئے نمازوں کو چھوڑ، اب بڑی کنوینئنٹلی بستر گرم اور اس کے اوپر سے اٹھنا، وہی بستر جو اللہ کی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ آرام سے پوری رات اس میں بسر کرو، صبح اٹھنا مشکل ہو جائے کہ کیسے اٹھیں، چلو ٹھیک ہے ابھی شیطان بھی اتنا بہکاتا ہے اس وقت کہ اب تو دیکھو بالکل اذان ہونے میں ٹائم کتنا رہ گیا، اب 2 منٹ تو رہ گئے، اب تم اٹھو گی وضو کرو گی کیسے نماز پڑھو گی، سو جاؤ اٹھو گی نماز پڑھ، کہتے کہ ایک اگر آپ کو اللہ اکبر کہنے کا صرف وقت مل گیا اور دوسری نماز کے اندر آپ داخل ہو گئے تو اس نماز کو آپ قضا میں نہیں شامل کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وقت کی نماز میں شامل، ایون دو یو سیڈ اونلی اللہ اکبر، تو وہ چھوڑنے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں۔ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور ہم کتنے آرام سے کتنی دفعہ آپ ایزیلی آپ دیکھیں، چلے اللہ نہ کرے کوئی بیماری ایسی نہیں ہے یا ایسا نہیں، بیماروں کے لیے تو ویسے ہی احکامات دے، آپ ذرا یہ سوچئے کہ ہم پارٹیز میں جب جاتے ہیں رات کو، آپ نے کروڑ دفعہ یہ دیکھا ہوگا کہ ہم جب پارٹیز میں ہوتے ہیں شادیوں پہ ہم جاتے ہیں اسی وقت عین مغرب کے ٹائم پہ کھانا کھل جاتا ہے اور ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ کھانا کھل گیا، اور پھر کسی کو ہوش نہیں رہتا کہ کیا کرنا ہے، کسی طرح سے لائن میں لگے اور کھانا لے لیں۔ کبھی اناؤنسمنٹ یہ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ پھر وہی بات ہے کہ ہر ایک کا نہیں ہوتا، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی اب نماز کا ٹائم ہے پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم کھانا کھولیں گے اور اب کھانا، اور ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں اب تو پارٹی میں آئے ہوئے گھر جا کے نا مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لیں گے، اور کئی دفعہ تو اتنا تھک کے گھر جاتے ہیں کہ عشاء بھی نہیں پڑھی جاتی، پھر وہ ٹکرے مار کے کہ کسی طرح سے 3 فرض اس کے پڑھ لیں، 4 اس کے پڑھ لیں، ایک وطر پڑھ کے تو سو جاتے ہیں، پھر کل دیکھ۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بس یہ کرتے جائیں کہ دیکھیں جو ہو گیا نا وہ ہو گیا، اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس پہ توبہ کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی محبت کرنے والے ہیں انشاءاللہ ہمیں، لیکن آگے کی زندگی میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ ایک آیت نے زندگی بدل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا حکم وقت پہ نماز۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میں زندگی، الحمدللہ ہم ہیں آیت نمبر 102 کے مڈ میں، دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيَأْخُذُوا
چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں حذرکم اپنا بچاؤ و اسلحتہم اور اپنے اسلحوں کو ود الذین کفروا تو چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لو تغفلون کہ تم غافل ہو جو ان اسلحتکم کہ اپنے اسلحوں سے و امتیاتکم تو اپنی ساز و سامان سے فیمیلون تو وہ حملہ کر دیں علیکم تم پر مائلتن حملہ کرنا واحدہ اچانک تو ولا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے علیکم تم پر ان کانا اگر ہے بکم تمہیں اذن کوئی تکلیف من مطرن بارش سے او کنتم مرضا یا پھر تم بیمار ہو ان کے تضعوا اسلحتکم کہ تم رکھ دو اپنے اسلحوں کو فخذوا حذرکم تو پکڑے رکھو اپنا بچاؤ ان اللہ بے شک اللہ نے اعدہ تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاباً مہینہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا عذاب تیار رکھا ہے۔ یہ بالکل وہی جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتا دیا کہ اپنا اس اسلحہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھو اور اسی حالت میں تم نماز پڑھ لو اور لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم بیمار ہو یا بارش ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر تم اتار سکتے ہو ساتھ اس کے وہ بھی بتا دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے سے تدبیر بتا دی کہ کس طرح سے تیاری پوری رکھو لیکن نماز نہیں۔ اور آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا پس جب قضیتم الصلاۃ تم نماز پوری کر چکو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کر۔ دیکھیے میدان جنگ میں ایک رکعت نماز پڑھیں صحابہ نے نبی علیہ السلام نے تو 2 پوری تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم جنگ کے سامنے ہو گئے ہو تو اب یہ نہیں کہ تم لوگ پاگلوں کی طرح کہ اب کیا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے تو وہاں سے تیر آ رہا ہے تو میں بھاگوں تو میں یہ کروں تو اپنا دماغ اپنا پورا اپنا سوچ اپنی جو ہے وہ اللہ کی مدد نہ تمہارے اسلحے تمہاری مدد کریں گے یہ تو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طرف سے ایک وسیلہ ہوتا ہے نا ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اسباب ہوتے ہیں کہ تم محنت کر رہے ہو تم یہ سارا کام کر رہے ہو کرنے وہ ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ کہ اللہ کو یاد کرو کیسے یاد کرو قیاماً کھڑے وقعوداً اور بیٹھے وعلی جنوبکم اللہ اکبر اور اپنے پہلو اگر کھڑے ہو تو یاد کرو بیٹھے ہو تو یاد کرو اگر بستروں پہ لیٹے ہوئے تو بھی اللہ کو تتجافى جنوبهم خوف یاد ہے آپ کو اللہ اکبر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن بندے جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی پشتیں جو ہے وہ بستروں پہ نہیں وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر اللہ کو یاد کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنا کوئی آسان نہیں اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا پس جب فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پس جب تم اطمینان میں آ جاؤ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو پھر نماز قائم کرو اب آپ نے تو نماز خوف دیکھا نا کیونکہ جلدی جلدی سے پڑھ لی تھی پھر آگے چلے گئے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم امن کی حالت میں ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا آرام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاؤ اور نماز پڑھو اقیم قائم کرو یہ نہیں کہا کہ اکیلے اکیلے پڑھ لو جماعت کے ساتھ نماز ہے اب دیکھ لیجئے اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے ہمارے بیٹوں نے اور ہمارے خامدوں نے اور ہمارے باپوں نے اور سارے آدمیوں نے تو یہ بات ہی بھلا دی ہے فاقیم الصلاۃ نماز قائم کرو اللہ اکبر ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتابن فرض ہے کتابن موقوتا مقررہ وقت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنوں پر نماز قائم کرنا جو ہے وہ فرض کر دیا گیا ہے وقت مقررہ پر نماز پڑھنا ولا تہنوا بس نہ تم کمزوری دکھاؤ فی ابتغاء القوم کہ نہ تلاش میں دشمن کی قوم کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب تم ہو تو دشمن کے پیچھا کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ ہمت نہ ہارنا ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کہ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں کما تعلمون جیسے کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو کہ تمہیں پرابلم کیا ہے تم کیوں اتنا گھبرا رہے ہو جیسے اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو بھی تو تکلیف پہنچتی ہے تمہارے پاس تو تمہارا اللہ ہے تمہیں تو اتنی اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدے کی کہ تم جیسے شہید ہوگے تم جنتوں میں چلے جاؤ گے اور اگر تم غازی بن کے لوٹتے ہو تو اتنا اجر اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹو گے ان کو کون سا اجر کی امید ہے وہ کس طرح سے قائم آخر انہوں نے بھی اپنے گھر چھوڑے ہیں اپنا مال لگایا ہے اپنی جانیں لے کے لڑنے کے لیے تمہارے ساتھ آئے ہیں تو تمہیں تو بہت ہمت والا ہونا چاہیے رائٹ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ کہ وہ تو تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو وہ امید نہیں رکھتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بے شک ہے اللہ
अलीमन हकीमा, कि बहुत ज्यादा इल्म रखने वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह को पता है कि किसने कहाँ पे क्या काम करना है और कैसे काम करना है। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इन्ना, बेशक हम, किसने, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बेशक हमने, अंज़लना इलैकल किताब बिल हक, बेशक हमने ये किताब, ये कुरान पाक जो है, ये सच्चाई के साथ, हक के साथ नाजिल किया, लितहकुमा, ताकि आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं क्यों नाजिल किया, कि आप फैसला करें, बैनन नासी, लोगों के दरमियान, बिमा अराक अल्लाह, जो कि दिखाया, यहाँ पे अराक जो है ना, दिखाने का जो आया है, एक्चुअली ये है कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी तरफ वही की है, उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लोगों के दरमियान फैसला करो। वला तकुन लिल खाइनीना खसीमा, और ख़यानत करने वालों के साथ, और ख़यानत करने वालों के लिए और झगड़ा करने वालों के लिए, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनके साथ इंसाफ के साथ फैसला करो। वस्तगफिरुल्लाह, तो बख्शिश मांगिए अल्लाह से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है, गफूर और रहीमा, बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला। वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानूना, और ना, वला और ना तुजादिल, और ना आप झगड़ा करें, अनिल लज़ीना, उन लोगों से जो यख्तानूना, ख़यानत करते हैं, अनफुसिहिम, अपने नफ्सों से, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, मिन काना खव्वानिन असीमा, कि उसको जो बहुत खाइन और गुनाहगार। अब इस आयत का एक शान नज़ूल है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक अंसार के कबीले का एक शख्स था। उसने अपने नेबर के घर से दो चीज़ें चोरी की। एक तो उसकी ज़रा थी जो उसने चोरी की, और एक आटे का थैला था। अब वो जो थैला लेके पहले वो अपने घर आया, फिर उसको ये डर हुआ कि कहीं किसी को पता लग गया तो वो आके देख सकता है तो मेरे घर में। तो उसने क्या चालाकी की कि वो थैला उठाया और वो ज़रा ली, और एक यहूदी के घर में जाके उसको कहा कि ये मेरी इमानत है, मैं तुमसे कुछ दिन के बाद ले लूंगा, ये तुम अपने पास रख। आके अपने घर आराम से सो गया। अब सुबह जब वो शख्स उठा, जिसका, वो भी इंसार के कबीले का था, जो उसका नेबर था जिसकी चोरी हुई थी, तो उसने देखा कि उसकी ज़रा नहीं है और उसका जो थैला था आटे का वो भी नहीं है। तो उसने सबसे पहले तो अपने नेबर के पास गया, तो उसने उसको कहा कि तुमने मेरा चोरी किया, क्योंकि हुआ क्या था कि उस थैले में एक छोटा सा सुराख था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जहां जहां जैसे आटा लेके गया तो उसको उसके ड्रॉप्स गिरे हुए मिले। तो उसने देखा कि ये ड्रॉप्स जो हैं वो साथ वाले नेबर के घर की तरफ जा रहे हैं। उसने उसको जाके जब पूछा कि मेरा इस तरह से है तो तुमने चोरी की है, उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम आओ मेरे घर में, देखो, सारा घर देख लो। उसने जब देखा तो उसको कुछ नहीं मिला। अब उसको नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या है। फिर अचानक उसको ये हुआ कि मैं देखूं कि ये निशान जो है आटे के, जिससे वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उसने देखा कि वो निशान उसके बाद जहां जा गए तो वो उसको फॉलो करता रहा। तो उसने देखा कि ये एक यहूदी के घर की तरफ गए हैं, और उधर उसके अंदर वो आटा या जो भी चीज है उसकी वहां पे हो। उसने यहूदी से जाके पूछा, उसने कहा कि मेरा इस तरह से चोरी हुआ है, तो तुमने चोरी किया है? तो यहूदी ने कहा कि नहीं, मैंने तो चोरी नहीं किया, मेरे पास तो किसी की इमानत है, वो मेरे पास इमानत रखवा के गया था। अब क्योंकि मामला खुल गया तो वो जिसने चोरी की थी अब वो मुकर गया। उसने कहा नहीं जी, मैंने तो चोरी नहीं की, मैं ये झूठ बोल रहा है, मेरे पे इल्जाम आ रहा है। अब क्या हुआ कि मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मामला गया और देखा कि क्योंकि वो जिस बंदे ने चोरी की थी उसके अंसार का जो कबीला था वो उसके साथ सारे मिल गए। उस जमाने में आपको पता है ना कि अगर एक बंदे की उसका कबीला जो होता है उसकी उसकी प्रोटेक्शन होती थी कि उसको कोई कुछ नहीं कह सकता था। तो हालांकि वो गलत होता या सच होता तो पूरा कबीला उसको उसको संभाल लेता था। तो अब कबीले वाले उसके साथ मिल गए और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो ऐसे दलाइल से बात कर रहे थे और इस तरह से कि वो जो यहूदी था वो बेचारा वो लगे कि जैसे वो झूठा है। अब करीब था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चोर जो बंदा था उसके हक में कोई फैसला कर देते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये वही भेजी कि देखो, तुम जो खयानत करने वाला है, लिल खाइनीना खसीमा, के उनके लिए तुम झगड़ा नहीं करो। अब यहाँ से एक बहुत खूबसूरत एक पैगाम भी मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए गायब का इल्म नहीं था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहां जिस वक्त चाहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया और बता दिया गायब की वो बातें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला जितनी जिस वक्त चाहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देते थे, लेकिन उनको कंप्लीट ऐसे नहीं पता था। तो फौरन अल्लाह ने वही कर दी कि ये गलत है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मामला संभाल लिया। अब देखिए कि दूसरा फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा वस्तगफिरुल्लाह, तो बस बख्शिश मांगिए अल्लाह से। किस बात से कहा था कि वो एक तो नंबर वन हमें ये समझ आता है कि वो लोग जिसने, क्योंकि वो मुसलमान ही थे, जिसने जो दो कभी आपस में जो नेबर थे
تو अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगो कि अल्लाह सुब्हान ताला उनको बख्श दे। और फिर इन अल्लाह काना गफूर और रहीमा, कि बेशक अल्लाह सुब्हान ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। फिर अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं वला तुजादिल अनिल लज़ीना, तो मत आप झगड़ा करें, मत उनकी बातों में आए उन लोगों के लिए यख्तनूना, जो खयानत करते हैं अनफुसहुम, अपने नफ्सों से। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, हरगिज पसंद नहीं करता, मन काना खवानिन असीमा, कि जो खाइन भी है और गुनाहगार भी है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे बता दिया कि जो खयानत करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला बिल्कुल उनको पसंद नहीं करते। अब हमें ये देखना कि खयानत, देखिए खयानत ऑपोजिट अगर देखते इमानत है तो खयानत है, कि जो इमानत में खयानत करता है, हमारे जहन में ये बात आ रही है। लेकिन अगर आप खयानत के ऊपर धोखा लिख देंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी कि खयानत करने वाला कौन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर हम अक्सर ये होता है कि हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिली में बहन भाई हैं, या कोई भी हमारे अराउंड होते हैं, वो हमसे बड़े कोई बात हमें बताते हैं कि देखो ये ऐसे मामला हुआ था, तो तुम किसी को नहीं बताना। और थोड़ी ही देर में हमारे पेट में कुछ होने लगता है, हम फौरन वो बात ना अपनी दूसरी दोस्त को बता के कहते हैं देखो तुम किसी को नहीं बताना, ये बात ऐसे हुई है। अक्सर हो जाता है ना, जब तक हमें अच्छे से इस बात की समझ नहीं आती कोई कितना बड़ा गुनाह है। और अक्सर अब आप एक फॉर्मूला यूज करना शुरू कर दें कि किसी को जब आप अपनी बात बताएं तो उसको ये याद भी करा दें कि देखो ये बात तुम्हारे पास मेरी इमानत है, क़यामत के दिन अगर खयानत की तो मैं आ जाऊंगी तुमसे पूछने, तो कभी नहीं बताएगी, फिर वो डर लग जाता है। लेकिन अगर आप यूजुअली आम तौर पे हम बात बताते हैं, अभी एक बात बताता है तो हम फौरन दूसरे को बता देते